کہ ایک خالق کائنات، یہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ اس طریقے کی کتاب تو نہیں لکھے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایک خالق کائنات اگر اس کو واقعی میں لوگوں کو اس کی نیت، اس کی چاہت اگر لوگوں کو اچھا بنانا ہے تو وہ اچھا ہی کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ اس کو کتاب کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ آپ سمجھ رہے بات فیض؟ جی بالکل بالکل، میں سمجھ رہا ہوں، اور اللہ کا انصاف بھی بہت ہی زیادہ بچکانا اور عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ، آئی تھنک مجھے اس کا سورہ نمبر، آئی تھنک آیت نمبر یاد نہیں آ رہا، بٹ آئی تھنک بقرہ کے اندر ہے کہ ہم ظالموں کو صحیح راستہ نہیں دکھاتے، مطلب جو غلط کام کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتے۔ ارے اللہ تعالیٰ، یہ کیسا بات ہے؟ جو اچھا انسان ہے وہ تو پہلے ہی اچھا ہے، آپ اسے اور کیا اچھا بنا لو گے؟ جو برا انسان ہے آپ اسے ہدایت دو نا، لیکن آپ کہتے نہیں میں اسے ہدایت نہیں دوں گا، یہ کیسا بات ہوا؟ اب جو بھوکا ہے آپ بولو میں تجھے کھانے نہیں دوں گا، جس کا پیٹ بھرا ہے میں اسے کھانا دوں گا۔ یہ کس ٹائپ کا اللہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا ہوتا ہے، انسانیت کیا ہوتا ہے، اور بچکانی باتیں کرنا، بات بات پر غصہ ہو جانا، بات بات پر ناراض ہونا، کوئی عبادت کرے تو خوش ہو جانا، یہ انسانی فطرت کیوں رکھتا ہے؟ اور مال غنیمت کا بھی بات کرتا ہے کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی مال غنیمت چاہیے۔ بالکل، اور ایک میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمان جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو، اللہ کو اور محمد صاحب کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، میں ایک منٹ، ٹھیک ہے، اسکرین پہ دکھ رہا ہے فیض؟ جی دکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ یعنی یہ اللہ کے بارے میں کس نے بتایا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جی۔ محمد صاحب نے بتایا ہے نا؟ ہاں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، محمد صاحب نبی ہے، یہ کس نے بتایا؟ خود محمد صاحب نے بتایا۔ نہیں، یہ اللہ نے بتایا، ٹھیک ہے۔ محمد جی صاحب، ٹھیک ہے۔ ہاں، محمد صاحب کو کس نے بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہے؟ وہ اللہ نے اللہ بتایا۔ اور یہ اللہ نے بتایا محمد نے جبریل کے بتایا، ہاتھ میں۔ یہ سرکولر، مطلب ان کو پروو کرنے کے لیے یہ اسی میں گھومے گا، یعنی اللہ نے محمد صاحب کو بتایا اور محمد صاحب کو اللہ نے بتایا، مطلب یہ دو کے علاوہ تیسرا کوئی پروف ہے ہی نہیں۔ بالکل، اور سمجھ ہمارے رہے ہو نا؟ اللہ میاں اپنے نبی سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد وہ چھٹی پر چلے گئے، جبریل علیہ السلام بھی چھٹی پر چلے گئے، لیکن وہ ایک دور وقت تھا کہ اپنے نبی کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر آیات نازل کر دیتے تھے، چاہے وہ لونڈیوں کو حلال کروانا ہو، چاہے وہ اپنا زیادہ شادی کرنی ہو، چاچا کے تاؤ کی سبھی بیویاں، سبھی لونڈی اور آپ کی بیویاں آپ کو کوئی گفٹ کر دے، وہ سب آپ کے لیے حلال ہے، وہ صرف آپ کے لیے ہے۔ تو نبی کی نہیں خواہش لیکن، پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ترنت ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور آج ہاں، 1400 سال سے اللہ تعالیٰ بالکل ایسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹھے ہیں کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، جبکہ انہی کے نام پر اتنے زیادہ قتل و غارت ہو رہا ہے۔ یہ ایک کامیڈی دیکھو فیض، کہ یہ چیز اسی سرکل جو میں نے بنایا ہوں اسی سرکل میں گھوم رہی ہے، پروف پورا۔ ہاں، وہ گنگا دری قرآن کس سکتی کی مانے، کتاب ہے؟ سکتی اللہ مانے کی گنگا کتاب ہے۔ درے یہ کس جیسا نے والا۔ بتایا؟ محمد صاحب نے بتایا، ٹھیک ہے۔ محمد صاحب نبی ہے، یہ اللہ نے بتایا۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ محمد صاحب نے بتایا۔ یہ اس کے علاوہ کوئی تیسرا پروف ہے ہی نہیں۔ اچھا، اللہ ہے، اس کا نام اللہ ہے، کس نے بتایا؟ محمد صاحب نے بتایا۔ محمد صاحب کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ جی۔ یہ کیا لاجک ہے یار؟ یہ اس کے علاوہ کوئی پروف ہی نہیں ہے، یہ سب یہ دو چیز میں ہی گھوم رہا ہے۔ یہ تیسرے جی کو کس اور نے؟ اچھا، اس میں اور ایک کامیڈی دیکھیے آپ، کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ محمد صاحب جو ہے وہ ان کو معراج ہوئی، ٹھیک ہے، اور وہ تو مسجد اقصیٰ تک گئے، پھر آسمانوں کی سیر کی، اللہ سے ملے اور نبیوں سے یہ کیا وہ کیا، ٹھیک ہے، اور کچھ ہی سمے میں، کچھ ہی وقت میں یہ پوری پوری چیز جو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔
अच्छा, अब इसके बाद जो है वहाँ के जो मुशरिक थे या वहाँ के जो नॉन मुस्लिम्स थे, वो कहने लगे यार ये क्या मोहम्मद साहब नया लेके आए, ये सब क्या बता रहे हैं? तो उन लोग ने क्या किया उनको हज़रत अबू बकर उनको मिले और उन्होंने उनसे सवाल किया कि यार ये ऐसा-ऐसा होता है क्या? ये कुछ ही पल में अल्लाह के पास चले जाना, यहाँ चले जाना। तो अब देखिए कि उनके ज़हन कितने ब्लॉक थे, उनकी दलील क्या थी सिर्फ़ इतना देखिए। हज़रत अबू बकर उनसे पूछते हैं कि ये किसने बताया? मोहम्मद साहब ने बताया ना? तो वो कहते हैं कि हाँ, मोहम्मद साहब ने बताया। तो हज़रत अबू बकर कहते हैं कि हाँ, फिर सही बताया। यानी ये किस तरीके का लॉजिक है किसी को सही समझने के लिए कि बस इसने बता दिया तो सब सही हो गया। एक्चुअली क्या कुछ है ना, इसके अलावा वो उनके एक्सटर्नल उनके प्रूफ है भी कि नहीं है? एक वो क्या होता है ना साहिल भाई, जो खिलाफती ग्रुप होते हैं, उनमें से अगर कोई एक बंदा भी डिसीजन ले तो वो बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं उन्हीं की पार्टी का बंदा है ना। अब पॉलिटिकल पार्टी होती है, कोई एक अगर विधायक बयान दे देता है, दूसरा विधायक उसी पार्टी का, वो बोलता थोड़ी ना है कि इसने गलत बोला, वो बोलता है नहीं नहीं ठीक है, लेकिन आई थिंक कुछ इस तरह से बोला होगा। वो ये होता है, वो अपने खिलाफ नहीं जाते खिलाफती लोग। बिल्कुल। अच्छा प्लीज कंटिन्यू, जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। फैज वेरी गुड बेटा, काफिरों का नबी जीसस मोजिजा दिखाता है और मोमिनों का नबी सिर्फ बिस्तर गर्म करने पर मसरूफ है। प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुपर चैट के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके नजदीक हजरत मोहम्मद साहब नबी क्यों नहीं हो सकते? जी, मैं ऐसे शख्स को नबी क्यों मानूं जो 6 साल की बच्ची से निकाह करे। मैं ऐसे शख्स को नबी क्यों मानूं जो अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी कर ले। मैं ऐसे शख्स को नबी क्यों मानूं जो अपने मलकियत में आई हुई औरतों को लूंडी बोले और उनके साथ हम बिस्तरी करे। मैं ऐसे शख्स को नबी क्यों मानूं जो उन बच्चों को कत्ल करवा देता है जिनके प्यूबिक हेयर आ जाते हैं। मैं ऐसे शख्स को नबी क्यों मानूं जो अस्मा बिनते मारवान, जिसने एक छोटी सी तनकीद की थी रहमतुल्लाह आलमीन पर, जिसके दिल में पूरी रहमत भरी हुई है कूट कूट के, वो छोटी सी तनकीद पर इतना नाराज होता है कि जब उसका बच्चा उसके सीने पर लेटा होता है तब वो उसे कत्ल करवा देता है। मैं क्यों मानूं ऐसे शख्स को नबी? बहुत गहरे सवाल आपने रख दिए हैं, और अब ये जो हमारे मोमिन भाई है उन्हें खुद ये फैसला करना चाहिए कि फैज़ जैसे लोगों के जो सवाल है उनके क्या जवाब हो सकते हैं, ताकि फैज़ जैसे लोग जो है वो अ, जो इस्लाम से बदज़न हो गए हैं, दूर हो गए हैं, वो फिर आ जाएं। इन सवालों के क्या जवाब है आप लोगों के पास? क्यों ऐसे शख्स को हम नबी माने, जो जिनकी जो लाइफस्टाइल ऐसी है, जिनका कैरेक्टर ऐसा है, जो जिस पे सवालात उठते हैं? क्योंकि आप देखिए कि एक अच्छा इंसान जिसको काफी अच्छा समझा जा रहा है, उसमें तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए सवाल उठाने की। एक भी पॉसिबिलिटी नहीं होना। चलिए किसी ने गलत समझकर एक कोई एतराज उठाया, ठीक है, उसकी उसकी कम इल्मी थी, उसको समझ नहीं आया, तो उसने एक सवाल उठाया, ठीक है, आपने जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, छठा सवाल, सातवां सवाल, सवाल ही सवाल उठ रहे हैं मोहम्मद साहब के हर तरीके पे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक इतना अच्छा और सच्चा और अ, अल्लाह यानी खालिक कायनात की तरफ से भेजा हुआ इंसान, और जिसको रहमतल लिल आलमीन कहा जा रहा है, उसके ऊपर इतने एतराजात उठाना भी कैसे पॉसिबल है? एक दो नहीं, हजारों एतराज जो है हम उठा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना। तो ये हमारे मुसलमान भाइयों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या वजूहात है जिसकी बुनियाद पे सवालात उठ रहे हैं। आप देखिए, तहकीक करिए, अपने ऊपर उसको डालिए, सोचिए कि अगर ये मोहम्मद साहब हमारे साथ अगर इस तरीके से किए होते, हमारे लिए कहा होता, हमारे घर वालों के लिए इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए होते, तो क्या हम फिर भी उनको अपना नबी मानते?
ایک سب سے بہترین انسان مانتے، یہ آپ لوگوں کو غور کرنا ہے۔ تو بڑا ہی زبردست آپ نے سوال اٹھایا ہے فیض، کہ آپ کیوں مانیں حضرت محمد صاحب کو نبی۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر جو اگلا سوال آتا ہے، لگ بھگ اس کا جواب آپ نے دیا ہے، لیکن اسپیسیفکلی میں پوچھنا چاہوں گا تاکہ آپ اسپیسیفک اس پہ آنسر دے سکے کہ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے؟ اسلام میں عورتوں کا مقام بس اتنا ہے کہ انہیں ایک چرن دیا جاتا ہے کہ آپ کو جنت میں اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت بنا دے گا اور آپ حوروں کی سردار ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے، بس آپ کو یہ خیالی پلاؤ آپ کو آپ کے ساتھ لے کر چلنا ہے، ورنہ آپ کو آپ کے پیارے نبی بے عقل، کم عقل، شیطان کی شکل میں آنے والی عورت آپ کی جائیداد ہے، آپ کی کھیتی ہے، آپ جیسا مرضی اسے استعمال کر سکتے ہو، عورت کی پٹائی کر سکتے ہو، اور مطلب کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جلیں گی۔ یہ ساری باتیں آپ کو لگتا ہے کہ عورتوں کے حق میں ہے؟ یہ جو پورا کا پورا مذہب اسلام ہے، یہ صرف مردوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ قرآن میں دیکھو، ہر جگہ بات ہوتا ہے ہی از اللہ، ہی از اللہ، ہی ہم مردوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور سی عورتوں کے لیے۔ مطلب جو مرد حضرات تھے وہ اللہ کو مرد ہی مانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی سارے کے سارے حقوق مردوں کو دیے ہیں۔ مردوں کو حق ہے کہ وہ 4 شادی کر سکتا ہے، لونڈی رکھ سکتا ہے، عورتوں کو کوئی حقوق نہیں ہے۔ عورت اپنی مرضی سے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ اگر آج کا جو اصل اسلام ہے وہ لاگو ہو جائے تو عورت کا ہنسنا، عورت کا گھر سے باہر نکلنا اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی وہ، کیونکہ سارا کا سارا اسلام کے خلاف ہے۔ تو عورتوں کا کوئی حقوق نہیں ہے، عورت بس اتنا ہے جیسا آپ استعمال کر سکتے ہو۔ جیسا میرا یہ فون ہے، میں ایسا استعمال کروں، توڑوں پھوڑوں پھینکوں، آپ کون ہوتے بولنے والے؟ اسی طرح جو عورت آپ کے نکاح میں آ جائے یا ملکیت میں آ جائے، پھر وہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کا جائیداد ہے، آپ جیسا مرضی استعمال کرو، کوئی نہیں بولے گا، یہاں تک کہ آپ کو اللہ بھی نہیں بولے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سارے حقوق دینے والا وہی اللہ ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی پروردگار ہے جس نے پوری دنیا بنائی ہے۔ اور وہی محمد صاحب کی سوچ ہے جو کہ ایک مرد تھے، جی کیا ایسا بالکل، کہا جا سکتا ہے؟ بالکل۔ وہ اللہ بھی مرد ہی ہوگا، تبھی تو اس نے سارا نبوت مردوں کو دیا، اور تو کچھ بھی نہیں دیتا وہ۔ جی، بہت بہترین انداز سے آپ نے جواب دیا ہے فیض۔ اگلا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ کیا وہ ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ انہیں اسلام اور محمد صاحب کی زندگی کو عقیدت کی پٹی ہٹا کر پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ جتنے لوگ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ پہلے سے طے کر چکے ہیں کہ اسلام سچا، اچھا، محمد صاحب دنیا کے سب سے بہترین انسان ہے، یہ ایک طے آلریڈی ہو چکا ہے۔ تو کیا آپ ان کو ایسا میسج دو گے کہ وہ یہ جو پٹی ہے اس کو نکال، کیونکہ آپ اگر کالا چشمہ پہنو گے تو آپ کو سب ڈارک ہی نظر آئے گا، آپ اگر لال چشمہ پہنو گے تو آپ کو سامنے سب لال طریقے سے دکھائی دے گا۔ تو یہ چشمہ، یہ عقیدت کی پٹی جب تک اترتی نہیں ہے تب تک آپ کو غلط غلط نہیں لگے گا، جی آپ کو بالکل، آپ نے صحیح سچائی کہا۔ سچائی نہیں لگے گی جب تک یہ پٹی لگی ہے۔ تو کیا آپ نصیحت دینا چاہو گے، کیونکہ کئی سارے ہمارے مسلمان بھائی بہن بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، مجھے بہت اچھی طریقے سے پتا ہے، تو ان کے لیے کیا آپ میسج یا نصیحت دینا چاہو گے کہ وہ بھی غور کریں ان چیزوں پہ؟ جی، میں تو سب سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ جو آپ کے دماغ میں فضولیت بھری پڑی ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اور آپ کسی ایک سورہ کو یا پھر کسی ایک آیات کو پڑھ کے قرآن کا معنی نہیں نکال سکتے، کیونکہ اگر آپ پڑھو، اگر اس میں کچھ غلطی ہے تو آپ کو تفسیروں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر تفسیروں میں اگر اختلاف نظر آتا ہے تو پھر آپ کو حدیثوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، حدیثوں میں پھر اختلاف نظر آتا ہے تو پھر آپ کسی عالم کا سہارا لیتے ہو، اور عالموں کے اندر بھی مسئلہ ہے، مطلب کل ملا کر آپ اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ پھر جو دعویٰ ہوتا ہے کہ اسلام ایسے جیسے 2 + 2 = 4، یہ بات تو جھوٹ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر کا سہارا، تفسیر کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کا سہارا۔ تو کیا وہ خالق کائنات اپنا کلام سمجھانے میں اتنا بے بس اور لاچار ہے
कि वो इंसानों की बनाई हुई तफसीरों और हदीसों के मोहताज बन चुका है, उसके बिना आप उसका कलाम ही नहीं समझ सकते। ये कैसा बेवकूफ़ी वाला बात है। क्या वो खालिक कायनात अपनी बात को समझाने में इतना बड़ा नाकाम साबित हुआ है? और दूसरा मैं यहाँ पर बात रखना चाहूँगा कि हमारे भाइयों को कुरान तो पढ़ना चाहिए, उससे पहले उन्हें हज़रत आयशा का जो एज है, उस पर लिपा-पोती करने की बजाय उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि सही अल-बुखारी की ऑथेंटिक हदीसें हैं। और ये जो जावेद अहमद गामदी जैसे ये लिपा-पोती वाले जो मास्टर हैं ना, जो कहते हैं कि 1 नंबर कहीं वहाँ से गायब हो चुका है, वो 19 था, 9 नहीं है। तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों को ना सुनें, क्योंकि बाकी के जितने भी, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या वेस्ट का हो, हर मौलवी यही दावा करता है कि हज़रत आयशा 9 साल की थी। तो आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो। मुझे पता है आप कभी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर बतौर आप एक इंसान हो और एक अच्छे इंसान हो तो। वरना आप ये साबित करने में पूरा ज़िंदगी निकाल दोगे कि हज़रत आयशा का उम्र शायद 19 साल होगा। आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ऑथेंटिक किताबें कहती हैं। आप लोंडियों को नहीं झुठला सकते। लोंडियों के साथ ज़िना करना, लोंडियों को बेचना, ये सब कुछ इस्लाम में हराम नहीं है, हलाल है। तो आप इनको झुठला नहीं सकते। आप उन पर अगर इतना दिमाग अगर आप कुछ साइंस या टेक्नोलॉजी में लगाते तो शायद मुसलमान दुनिया की सबसे अव्वल कौम होती। लेकिन आप दिमाग किसमें लगाते हो? इन चीज़ों को लिपा-पोती करने में लगाते हो, इनका मेकअप करने में लगाते हो। तो अब ये मेकअप और नहीं चल सकता, क्योंकि अगर इंसानियत के साथ आना है, तो आपको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम आपको पीछे धकेलता है। इस्लाम को लेकर आप इंसानियत के साथ नहीं चल सकते। आपको दोनों में से किसी अच्छा एक चीज़ को ही फैज, चूज़ मुझे करना ये पड़ेगा। जी, बड़े ही जबरदस्त अंदाज से आपने बात रखी है। मुझे मुझे फैज ये बताओ, कितने पैसे मिले आपको ये इस्लाम छोड़ने के लिए और ये इस्लाम पर सवाल उठाने के लिए? क्या पैसा मतलब? मैं पूछ रहा हूँ कि कितने पैसा? पैसे मिले। हाँ, कितने पैसे मिले आपको, कितनी रकम दी गई कि आप इस तरीके से आकर, आप पहले एक हिंदू एक्चुअली थे, क्या है ना, मैं मुस्लिम अभी थे। लिम्बरगिनी में बैठा हुआ हूँ साहिल भाई। मेरी जो लिम्बरगिनी है ना, उसी में मैंने वाईफ़ाई लगवा लिया और वहीं से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बस किसमें, ये लिम्बोर्गिनी में? हाँ, लिम्बरगिनी में बैठा हूँ मैं। और आपको पता नहीं होगा कि बनी इज़राइल जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उसने तो बिल्कुल मेरे लिए अपना एक पर्सनल बैंक खुलवा दिया उसने, कि तुम्हारा पर्सनल हाँ। बैंक है। बिल्कुल, इतना ज़्यादा मुझे पैसा मिला है, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं पैसे के बिस्तर पे अभी बैठा हुआ हूँ, मुझे कभी-कभी डर लगता है कहीं ये नोटों के बंडल खिसके तो मैं गिर ना जाऊँ, ऐसा लगता है मुझे। ओह! नहीं, क्योंकि सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारे पैसे दिए गए हैं इस काम को करने के लिए। तो यार, फैज़ तो लिम्बोर्गिनी में बैठ के जो है पैसों की गड्डियों पर बैठकर वहाँ पे वाईफ़ाई लगाकर, वो भी सीधा सैटेलाइट से उसका कनेक्शन कराया गया है। तो हुँ। फैज़ इतना, उसको इतना मालामाल किया गया है कि उसने ये फैसला लिया कि चलो ठीक है, मैं आता हूँ और इस तरीके से सवाल उठाता हूँ। तो खैर, फैज़ बहुत अच्छा लगा, और सब लोगों को पता है कि एक वक़्त ऐसा था कि आप मेरे चैनल पर आकर हम जो एतराज़ करते थे, उसमें आप कोशिश करते थे कि उसका जवाब हमें देख सकें, और उसके बाद फिर मैंने आपको हज़रत आइशा का जो आपका जो जवाब था, जो आपके मामू की तरफ से, या पता नहीं किसने आपको ये बताया था कि उनका हक महर अदा करने के लिए उनसे शादी की गई थी। तो उस पे भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद जो लौंडियों का सिस्टम है इस्लाम में, वो उस पे मैंने आपको कहा था, और मैंने यहाँ तक कहा था कि मैंने जैसा बताया, अगर वैसा नहीं है तो फिर आपका जूता और मेरा सर। तो उस पे आपने फिर तहकीकात भी की, और फिर एक दिन ऐसा आया कि आप हमारी ही स्ट्रीम पर आए, और आपने बोला कि नहीं, आपने जो बातें कही वो तो है वैसी, और कोई मुझे कन्विंसिंग आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए अब मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद फिर मजीद आपने इसमें जो बाकी भी हमारे जो एतराज़ थे वो भी आपने
सुने और उसको समझा, और उसके बाद आप दूसरे चैनल्स पर भी गए, आप मुफ्ती फजल हमदर्द साहब के चैनल पर भी गए, उनके सामने भी आपने सवाल रखा, उनको उनको भी आपने उनका भी पसीना छुड़वा दिया। तो यानी काफी अच्छा लगता है कि जब इस्लाम से एक इंसान बाहर निकलता है तो उसका जहन भी शार्प हो जाता है। तो ये बड़ी ही खुशनसीबी की बात है हम सब के लिए, और उम्मीद है फैज के हम जो मेहनत कर रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग होंगे जो सामने नहीं आ सकते, लेकिन उनकी सोच भी अच्छी हो गई होगी आपकी तरह। क्या कहते हो आप? जी, बिल्कुल। वो लोग ना इसी कगार पे बैठे हुए थे कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो मुसलमानों में या तो इस्लाम में। लेकिन साहिल भाई, शायद आप जैसे लोगों का ही सहारा है कि वो सच्चाई पता चलता है कि प्रॉब्लम मुसलमानों में नहीं, इस्लाम में है। तो फिर लोग इस्लाम से बाहर आ जाते हैं। और मेरी ज़िंदगी में ये जो बहुत बड़ा चेंज आया है, मुझे लगता है कि शायद 1 या 1.5 सालों में मेरा पूरा लाइफ बिल्कुल ही बदल चुका है, मेरा सोच बिल्कुल बदल चुका है। और मेरी जर्नी में सबसे बड़ा हाथ रहा, एक तो मेरा हिंदू दोस्त का कि वो मज़हब पर तनकीद करते थे और मैं गुस्सा हो के उनके सवालों के जवाब ढूँढता था। दूसरा यूट्यूब, और तीसरा इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल। इसके अलावा मैं शायद किसी और को क्रेडिट ना दे पाऊँ, क्योंकि ये तीनों ही मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल रखते हैं। और आपसे जब मैंने पहली मर्तबा बात किया था, तो बतौर एक मुसलमान की हैसियत से भी मैं आपका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। वो इसलिए क्योंकि आपकी बातों से मुझे हमेशा मासूमियत झलकता हुआ नज़र आया। क्योंकि मैंने अक्सर आपका वीडियो देखा तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपने जो भी बात किया, वो बेइज़्ज़त करने के लिए किया। ऐसा लगता था आपने एक मासूमियत भरे अंदाज़ में एक सवाल पूछा, जैसे एक छोटा बच्चा सवाल करता है। तो इसलिए मैं सुनने पर बिल्कुल मजबूर हो गया कि आई थिंक अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो वो दलील की रोशनी में बोलते हैं, ऐसे फिजूल में कोई बात नहीं करते। तो जब आपने कहा ना कि फैज़ सच में ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा ना हो तो तुम्हारा जूता मेरा सर, तो उस वक़्त मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था। लेकिन अगर आपका जो लहज़ा अगर ऐसा होता कि आप मुझे चिल्लाते, या फिर आप मुझे थोड़ा अगर जलील या रुस्वा करते मुझे, तो शायद मैं आपका इतना इज़्ज़त नहीं करता, और ना ही मैं कभी ये सोचता कि शायद इस्लाम में प्रॉब्लम है। मैं सोचता कि किसी न किसी तरीके से आपका मुँह बंद करवा दूँ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरा जो दिमाग बंद था, शायद आपने उसका ताला खोल दिया। और मुझे लगा कि आपने जिस मासूमियत से ये सवाल किया है, यही मासूमियत भरे सवाल मेरे दिल में भी आते हैं कुछ न कुछ। लेकिन जो आपने इतना बड़ा बात बोल दिया स्लेवरी सिस्टम का, तो फिर मैं अंदर से बिल्कुल हिल गया था पूरा। और आपका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, और वो सिर्फ़ आपकी वजह से ही आया है। तो मुझे नहीं पता कि आई आई थिंक कि आप अ, उम्र में आई थिंक आप मुझसे बड़े ही होंगे, मैं ही छोटा होऊँगा। तो आप मेरे बड़े भाई की तरह हो, और एक बड़े भाई के पास वालिद की तरह हकूक़ होते हैं। तो मैं आपके बच्चे की तरह हूँ, और मैं आपको हमेशा सुनता हूँ और सुनता रहूँगा। चाहे मैंने आपको आज तक नहीं देखा, मुझे नहीं पता आप कौन हो, क्या हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हो। अगर हिंदुस्तान में कभी वो माहौल बना कि जब हम अपना चेहरा दिखाकर लोगों से रूबरू होकर बात कर पाएँगे, जब हम बेखौफ हिंदुस्तान की गलियों में, सड़कों पर घूम पाएँगे, जब हमें कोई भी किसी भी तरह का डर नहीं होगा, तब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपसे मिलूँ। बहुत शुक्रिया फैज़, इतनी इज़्ज़त देने का। हालाँकि मैं उस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब एक वक़्त ऐसा आ जाएगा कि हम खुले तौर पर अपनी बातों को रख सकेंगे, तो ज़रूर मैं आपसे मुलाकात भी करूँगा और आपको अपने गले से भी लगाऊँगा। ये वक़्त ज़रूर आएगा। हिंदुत्व मैनिफेस्टो जी ने ₹400 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत-बहुत शुक्रिया। I don't support humanist ideology where Hindus are expected to sacrifice their interest in the name of humanism. I will stand strong on my position.
I will tell Faiz that things aren't straightforward. ये एक मैसेज है हिंदुत्व मैनिफेस्टो जी का, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैं और एक चीज़ कह दूं कि अगर फैज़ को अ, कोई मोमिन भाई से बात करना है, उससे सवाल करना है कि यार यानी आपने क्यों ऐसा फैसला ले लिया या क्या है, तो मैं लिंक ऑलरेडी शेयर किया हूँ। लेकिन ये जो लाइव होगा ये बिल्कुल कम वक्त के लिए होगा, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम है मुझे, इसलिए मैं उसको ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। लेकिन खैर, अगर एक्स मुस्लिम समीर साहब और अगर एडम जुड़ जाते हैं तो फिर इसको कंटिन्यू रखा जा सकता है। एडम को ऑलरेडी मैंने लिंक शेयर किया है, पर पता नहीं, शायद संडे है तो एडम का फैमिली टाइम होगा। तो मैं हूँ कुछ देर के लिए, जब तक हम लाइव कॉल्स स्टार्ट करते हैं हमारे मोमिन भाइयों के लिए। जी, फैज मैं जैसे भी पहले अगर पहले पहले कहना चाहूँगा साहिल भाई कि मैं ना जी चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, और जब ऐसा मौका आया ना कि हम सब फेस टू फेस लोगों से बात कर पाएंगे, तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म सबसे पहले मैं आपके ऊपर बनाना चाहूँगा। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त जरूर आएगा फैज, हिम्मत रखिए, एक दिन जरूर आएगा। और लोगों का सपोर्ट हमारे साथ है, मॉरल सपोर्ट है, कई सारे लोग ग्राउंड लेवल पे हमारे साथ हैं, ताकि किसी तरीके की परेशानी हमें नहीं पहुंचाई जाए। तो कई सारे ऐसे लोग हैं, मैं दिल से उनको सलाम भी करता हूं। एक्स मुस्लिम अब्दुल जी, हमेशा इनका फाइनेंशियल सपोर्ट आता रहता है, और इन्होंने 9 पाउंड का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लिख रहे हैं, एज गैप बिटवीन माय ग्रैंड मॉम ग्रैंड डैड वाज 4 years, and I heard the age gap between Ram Sita was maximum 5 years, but age gap of our beloved Prophet Muhammad and Aisha was 49 years. जय हिंद। ये एक मैसेज है गौर करने के लिए उन लोगों के लिए जो इस तरीके की जो मोहम्मद साहब की जो शादी है उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए एज गैप, देखिए आप, एक बच्ची और एक ऐसा इंसान जो बुढ़ापे में है, 54 years, और कैसे, यानी आप लोग कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, तो इससे पहले कि मैं वो दूसरा वाला लिंक निकालूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फैज के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और फैज उसमें वीडियो डालना भी शुरू करो। किसी ने अभी बताया कि 1 महीने से कोई वीडियो अपलोड नहीं है उसमें। जी, एक्चुअली क्या है, मैं उसे ना बंद करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मिर्ज़ा गालिब भाई ने कहा कि नहीं फैज़, जितने ज़्यादा चैनल होंगे उतना हमारे कुछ ऐसे मोमिन हैं जो शायद हमें ढूँढने का सोच रहे हैं या फिर हमारा सर तन से जुदा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो नाकामयाब होंगे, क्योंकि वो कितने सचवाला जी और कितने एक्स मुस्लिम साहिलों को ढूँढेंगे। उनके लिए ये मेहनत कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाना चाहिए, इतने ज़्यादा चैनल ओपन होने चाहिए। तो मैं भी यही कहूँगा, चाहे आपको इस्लाम का बहुत ज़्यादा इल्म हो या सिर्फ थोड़ा-सा इल्म हो, आप चैनल स्टार्ट कीजिए, ताकि मोमिनों को ये समझ में आए कि यार 1 या 2 बंदा नहीं है, भर-भर की ये तादाद है। और ह्यूमनिस्ट लोग होते हैं जो इंसानियत को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं, चाहे वो इस्लामी क्यों ना हो। बिल्कुल, तो उसमें लेकिन आप वीडियोस भी डाला करो, कुछ शॉर्ट